بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سب سے چھوٹی خالہ کی شادی ہی نہیں ہو رہی تھی جب ایک دن وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئیں اور کورٹ میرج کر لی، اور کچھ دنوں کے بعد خالہ لٹی پٹی گھر آئی تو نانی نے خالہ کو بے ہوشی کی دوا دے کر گہری نیند سلا دیا اور واویلا مچا دیا کہ میری بیٹی مر گئی، اور ہمیں سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی کچھ نہ بولے، اور یوں خالہ کو دفن کرائے۔ آدھی رات کو میں خالہ کو قبر سے نکالنے مولوی صاحب کے ساتھ قبرستان چلی گئی۔ جو ہی قبر کھودی تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو خالہ کا۔ میرا نام ایمان ہے۔ میں ایک عجیب و غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ عجیب و غریب اس لیے کہ ہر واقعہ ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی چونکا دینے والا واقعہ ہوتا تھا، خصوصاً میری چھوٹی خالہ کا۔ ان کے بارے میں تو آئے دن کوئی نہ کوئی حیرانی والی خبر ہی ملتی رہتی تھی۔ کبھی پتا چلتا کہ چھوٹی خالہ نے خودکشی کر لی ہے، اور کبھی پتا چلتا کہ نانی کو وہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہیں، تو کبھی کچھ اور خبر۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جایا کرتی تھیں اور کئی کئی دن رہ جاتی تھیں۔ امی چاہتی تھیں کہ ان کے دیور سے خالہ کی شادی ہو جائے، مگر میرے چاچو مانتے نہ تھے۔ اس دن کے بعد سے خالہ ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میری امی اور خالہ دو بہنیں ہیں۔ خالہ کا نام نمرہ ہے۔ امی اور خالہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ نانا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ نانی اور خالہ گھر پر اکیلی ہی رہتی تھیں۔ میرے ابو کا اچانک انتقال ہوا تو میں اور میری امی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نانی کے گھر آ کر رہنے لگے۔ میری خالہ کی عمر 30 سال کی ہونے والی تھی، پر ان کا کوئی رشتہ نہ آتا تھا۔ میری نانی کے شوہر کا بھی بڑی جلدی انتقال ہوا تھا، اور میری امی کے شوہر یعنی میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس خاندان کی لڑکیوں کے شوہر نہیں بچتے، اس وجہ سے وہ رشتہ بھیجتے ہوئے ڈرتے تھے۔ نانی ان باتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ پھر میری نانی نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر شہر اور محلہ چھوڑ دیا۔ دوسرے شہر میں آ کر میری خالہ کی شادی کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ آئے دن رشتے والے آتے، خالہ کو دیکھتے اور چلے جاتے۔ بعد میں ان کا انکار کا پیغام آ جاتا۔ میری خالہ دکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھیں، پر نہ جانے کیوں ان کی شادی نہ ہو پاتی تھی۔ میں اکثر نانی کو ان کی بابت پریشان دیکھتی۔ میری نانی تھوڑی پرانے زمانے کی خاتون تھیں، تو وہ ہر چیز کا خیال رکھتی تھیں کہ رات کو باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ وہ مجھے اور خالہ کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھنا چاہتی تھیں۔ شروع میں تو میری خالہ نانی کی بہت تابعدار تھیں، مگر پھر شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ چڑچڑی اور باغی ہو گئیں۔ خالہ اب نانی کی ایک نہ سنتی، اور آئے دن نانی سے بنا پوچھے کہیں چلی جاتی، اور جب نانی پوچھتی کہ کہاں تھی تو کہتی کہ اماں سہیلی کے گھر تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کبھی کوئی بہانہ بنا دیتی تو کبھی کوئی اور۔ مجھے خالہ کی باتوں پر بالکل یقین نہ آتا۔ نانی اب خالہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھی کہ آخر وہ روز جاتی کہاں ہے۔ نانی نے بہت کوشش کی کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح خالہ کی شادی ہو جائے، پر کہتے ہیں نا کہ قبولیت کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ رب کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ زندگی اسی رفتار سے گزر رہی تھی۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ بہت چھوٹا اور بہت سیدھا سا گھر تھا۔ گھر میں صرف نانی تھی جو محلے کے معزز گھروں سے ادھار سدھار لے کر ہمارا گزارا کر رہی تھی، مگر خالہ کے پاس اب جانے کہاں سے پیسے آنے لگے تھے۔ خالہ کی حرکتوں نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی ان کے پاس نئے کپڑے اور جوتے ہوتے، اور خوب پیسے بھی۔ ایک دن نانی نے سختی سے اس بابت دریافت کیا تو بتایا کہ میں کسی آفس میں کام کر رہی تھی، وہیں سے ملے ہیں، پر نانی مطمئن نہ ہوئی۔ انہوں نے خالہ پر اور کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا کہ نانی چاہتی ہی نہیں کہ میری خالہ کی شادی ہو، اور کئی بار مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے خالہ ہی جان بوجھ کر رشتے والوں کے سامنے کچھ ایسی حرکتیں کر جاتی ہیں کہ وہ خود ہی انکار کر دیں۔ ایک دن میں نے اسے فون پر بھی چھپ کر بات کرتے سنا۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری وجہ سے ہر رشتے سے انکار کر رہی ہوں، اور تم اپنے گھر والوں کو بھیج نہیں رہے۔ میں نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا سوچا کہ خالہ کس سے بات کر رہی تھی اور کس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی یا پلان بناتی، اچانک ہی خالہ کے ایک قدم نے ہماری زندگی پلٹ کر رکھ دی۔ جب صبح ہم اٹھے تو پورے گھر میں خالہ کو تلاش کیا، پر وہ ہوتی تو ملتی۔ خالہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ ایک خط چھوڑ کر گئی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں اس غربت میں نہیں رہ سکتی۔ میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں وہ بہت امیر ہے اور میں اسی سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔
हो सके तो मुझे मुआफ कर दें। नानी ने जैसे ही ये सब सुना वो बेहोश हो गईं। उन्हें अपनी तरबियत से ये उम्मीद बिल्कुल न थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। न जाने अब क्या होने वाला था। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि इनकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। हमारा मोहल्ले में रहना लोगों ने दो भर कर दिया था। नानी को बहुत अजियत उठाना पड़ी खाला की वजह से। फिर हमने ऐसे भी दिन देखे कि लोगों के तानों की वजह से हमने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। नानी ने खाला को बहुत ढूंढा पर वो ना मिली। नानी ने उम्मीद छोड़ दी और दिल को सख्त कर लिया कि आज से मेरी बेटी मर गई है। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन मैं घर से बाहर निकली तो देखा कि एक काली चादर में लिपटा फकीर बड़े गौर से हमारे घर की जानिब देख रहा है। मुझे देखकर वो भाग गया। मैंने थोड़े दिनों बाद फिर उसी फकीर को अपने घर के आसपास देखा, लेकिन मैंने गौर फिक्र नहीं किया क्योंकि अक्सर मांगने वाले इस गली में आया करते थे। हैरानी बस ये थी कि उसे पहले कभी ना देखा था। यूं लगता था कि जैसे वो किसी खास काम से यहां आता हो, क्योंकि मैंने उसे कभी मांगते हुए नहीं देखा था। वक्त का काम है गुजरना। सो वक्त गुजरता रहा और फिर चंद दिन के बाद अचानक रात की आखिरी पहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते हुए नानी को उठाया। नानी ने जो ही दरवाजा खोला, हमारे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरी खाला थी। उनकी हालत इंतहाई खराब थी। उजड़ा बिखरा हुलिया उनके साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रहा था। वो लुटे पुटे हालों में थी। बाल बिखरे हुए थे और पैरों में जूते तक न थे, न सर पर चादर। खाला के हाल पर मुझे बेहद तरस आया। वो नानी के पैरों में गिरकर मुआफी मांगने लगी कि अम्मा मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे मुआफ कर दें। मैं पागल थी, उसकी बातों में आ गई थी। वो मुझे धोखा दे गया। अम्मा मुझे मुआफ कर दो। मेरी नानी ने खाला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया कि तुम हमारे लिए मर गई हो, लेकिन फिर मेरे और अम्मी के कहने पर खाला को अंदर आने दिया। हम सब खुश थे कि चलो वो वापस तो आई हैं। मेरी खाला बहुत अच्छी थी, मगर न जाने क्यों खाला ने यह कदम उठाया था। लेकिन अब मैं खुश थी। मेरा ख्याल था कि मेरी खाला को मुआफी मिल जानी चाहिए थी। रात के वक्त जब अम्मी खाला के पास बैठी तो मैं भी उनके साथ ही थी। अम्मी ने खाला से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो बहुत अमीर था। वो मुझे तोहफे तहाइफ देता रहता था, इसलिए मैं अपने इस घर से तंग आ गई। मैं बस उससे शादी करके दौलत में जिंदगी बसर करना चाहती थी। मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छा इंसान होगा, मगर वो मेरी गलत फहमी थी। वो तो मुझसे निकाह भी नहीं करना चाहता था, मगर मैंने मजबूर किया उसे और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो लड़कियों को फंसाता है और आगे बेच देता है। उसने मेरे साथ भी यही करना चाहा। उसने मुझे अपने दोस्तों के पास भेजना चाहा। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बेहोशी का टीका लगाकर कोठे पर छोड़ गया। उसने मेरी बोली लगाई और मुझे तलाक देकर बेच दिया। वहां हर रोज मेरे साथ बुरा होता था। मैं हर वक्त बेहोशी में ही होती थी। कुछ दिनों पहले मैं वहां से भाग गई थी। बड़ी मुश्किलों से मैं यहां पहुंची हूं। सारे रास्ते यही लगता रहा कि कहीं पकड़ी ही ना जाऊं। अम्मी और खाला दोनों रोने लगी। खाला के पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। उनके साथ हद से ज्यादा जुल्म हुआ था। नानी ये सारी बातें सुन रही थी, मगर हमें यह ना पता चल सका कि नानी भी खाला की कहानी सुन चुकी हैं, क्योंकि अम्मी और खाला नहीं चाहती थीं कि उनको कुछ भी पता चले। नानी खाला से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए अम्मी को खाला को मना किया कि तुम उन्हें कुछ भी ना बताना। मेरी खाला बहुत अजीब हो गई थी। उन्होंने हमें मना किया कि किसी को पता ना चले कि मैं घर वापस आ गई हूं। लेकिन एक दिन पड़ोस की आंटी ने उन्हें देख लिया और पूरे मोहल्ले को खबर कर दी। खाला के घर आने से आसपास के लोगों की अब जबानें खुलने लगी थीं। वो जानना चाहते थे कि अब नानी की ये बेटी कहां से मुंह काला करके आई है। मैं भी अब बड़ी हो रही थी। मेरे भी रिश्ते आते, मगर जब वो खाला के किस्से सुनते तो दोबारा ना आते। एक दिन मैं घर से निकली तो देखा वही फकीर दरवाजे के आगे खड़ा था और मेरी खाला से बात कर रहा था। खाला रो रही थी और उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। मुझे आता देखकर खाला जल्दी से अंदर चली गईं और फकीर मुझे दुआ देकर चला गया। मैंने अंदर जाकर खाला से पूछा कि वो फकीर के सामने रो क्यों रही थी। मेरी खाला कहने लगी, कुछ नहीं, बस उसे दुआ करने को कह रही थी। जाने क्यों मुझे खाला की बात पर यकीन नहीं आया था। वो शख्स भी दिखने से फकीर नहीं लगता था। इसके बावजूद वो रोज हमारे घर मांगने आ जाता। लोगों को एक और नया मौजू मिल गया था। वो खाला और उस फकीर का चक्कर जोड़ने लगे। मुझे भी अब कुछ कुछ लोगों की बातों में सच्चाई महसूस होने लगी थी, क्योंकि अक्सर दरवाजे पर वो मुझे खड़ा नजर आता और मेरी खाला भी उससे बात कर रही होती।
लोगों के इस रवैये की वजह से नानी बहुत आजिज आ चुकी थीं। वो हर वक्त गुस्से में रहती थीं। खाला को देख देख कर उनका खून खोला करता था। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी आई और काफी बातें सुनाकर चली गईं। उस दिन मेरी नानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छुरी पकड़ ली और खाला को मारने के लिए भागी। मैंने और अम्मी ने बड़ी मुश्किल से खाला को बचाया। उन्हीं दिनों अजीब बात होने लगी। हमारे घर रात को पत्थर फेंके जाते जिन पर कागज लिपटे होते थे और उन पर मेरी खाला को धमकियां दी गई थीं। खाला मुझे वो कागज पढ़ने न देती थी, मगर एक दिन एक पत्थर मेरे हाथ लग गया जिस पर कागज लिपटा था और उस पर लिखा था कि शराफत से अपनी भांजी को हमारे हवाले कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये पढ़कर मुझ समेत सारे डर गए थे। नानी तो चुप ही हो गई थी। मुझे अब अपनी नानी की जहनी हालत ठीक न लगती थी। खाला की परेशानियों ने उन्हें दिमागी मरीजा बना दिया था। एक दिन मैंने देखा कि नानी एक गिलास दूध में कोई दवाई मिला रही हैं। मैंने सोचा कि शायद वो अपनी दवा खा रही हैं, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। लेकिन तब मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि नानी ने वो दूध खाला को पिला दिया। उसमें शायद बेहोशी की दवा थी, क्योंकि खाला वो पीते ही बेहोश हो गई थी और गहरी नींद सो गई थी। मैं और मेरी अम्मी नानी की इस हरकत के बारे में सोच ही रहे थे कि उन्होंने खाला को बेहोश क्यों किया। इससे पहले ही मेरी नानी ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। लोगों, मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। मेरी नानी हाय हाय करके ऊंची ऊंची बैन करने लगी। मैं इस सारी सूरत हाल को समझ ना पा रही थी। मैंने नानी को कहा कि खाला तो जिंदा है, मगर नानी ने मुझे और अम्मी को सख्ती से खामोश करवा दिया और कहा कि कोई भी कुछ ना बोले, समझो ये मर गई है। मोहल्ले वाले नानी का शोर सुनकर आने लगे। कुछ ही देर में घर मेहमानों से भर गया था। सारे रिश्तेदार भी आने लगे थे। मेरी खाला चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। देखने से ये लगता था कि वो मर गई हैं, लेकिन मैं तो हकीकत जानती थी कि उन्हें बेहोशी की दवा देकर बेहोश किया गया है। मेरी नानी ने किसी को गुस्ल भी ना करने दिया और कहा कि अपनी बेटी को वो खुद ही गुस्ल देंगी। मेरी खाला सिर्फ बेहोश थी, मरी ना थी, मगर नानी ने फिर भी उसके ऊपर कफन लपेट दिया। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि खाला जिंदा है और नानी जुल्म कर रही हैं, मगर नानी ने मुझे घूरा और इशारे से जबान बंद रखने का कहा। थोड़ी ही देर में सब लोग जनाजा उठाने आ गए। मेरी नानी शायद चाहती थी कि उनकी बेटी मर जाए ताकि वो लोगों के सवालों से बच सकें, मगर मैं खाला को जिंदा दफन होते नहीं देख सकती थी। मैंने ऊंची आवाज से चिल्लाकर कहा कि मेरी खाला जिंदा है, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया। उल्टा नानी ने मुझे ले जाकर पिछले कमरे में बंद कर दिया, जहां से मेरी आवाज किसी को भी ना आती। मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गई थी, मगर कोई मुझे वहां से निकालने ना आया। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरी खाला को जिंदा दफन होने से बचा लें। अब तो मेरी खाला भी अल्लाह से हर वक्त मुआफी मांगती रहती थी, इसलिए मैं दिल से दुआ करने लगी थी कि नानी को रोक दें ताकि खाला बच जाएं। मुझे कमरे के अंदर तक सबके बैन सुनाई दे रहे थे। मुझे अपनी अम्मी पर हैरत हुई कि वो कैसे अपनी बहन को यूं दफन होते देख सकती हैं। जनाजे के बाद अम्मी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैंने अम्मी से शिकवा किया तो अम्मी कहने लगी कि मैं मजबूर थी, अपनी माँ के आगे नहीं बोल सकती थी। अगर मैं कुछ बोलती तो वो हमें घर से निकाल देती। मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाती। अम्मा बहुत खफा थी उससे। उनको मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। मेरी अम्मी रोने लगी। मैं नानी से लड़ने बाहर आई थी कि उनसे पूछूं कि उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा दफन क्यों किया, मगर वो मुझे कहीं दिखाई न दी। अम्मी ने बताया कि जनाजे के बाद से वो घर पर नहीं है। मेरे लिए ये भी चौंकाने वाली ही बात थी कि अपनी बेटी की जान लेकर अब वो कहाँ चली गई है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी। मैं अपनी खाला को बचाना चाहती थी। बड़ी मुश्किलों से सब मेहमानों के जाने का इंतजार किया। मुझे परेशानी हो रही थी कि अगर मैं वक्त पर न पहुंची तो मेरी खाला का सच में दम निकल जाएगा। मैंने अपनी नानी को बहुत बुरा भला कहा। भला लोगों के डर से अपनी बेटी को जान से मार देना कहाँ का इंसाफ है। रात के 10 बजे तक नानी घर न आई। मुझे कब्र का इल्म नहीं था। नानी का इंतजार करते करते मैं थक गई तो मैं मौलवी साहब के पास पहुंची जिन्होंने जनाजा पढ़ाया था। मैंने उनको सारी सूरत हाल बताई। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो मेरे साथ चलकर कब्र खुलवाएं ताकि मैं अपनी खाला को बचा सकूं। वो भी ये सुनकर हैरान रह गए थे। मैंने अम्मी को बता दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नानी तो जाने कहाँ गायब थी। मैं सोचने लगी शायद उनका जमीर गवारा ना कर रहा होगा। ये अपनी बेटी को जिंदा गाड़ कर किसी घर में कैसे जाएंगी।
मैं मौलवी साहब के साथ कब्रिस्तान पहुंची। हमने गोरकुन को बुलवा कर कब्र खुदवाना शुरू की। जैसे जैसे कब्र से मिट्टी हटती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी कि पता नहीं खाला जिंदा भी होंगी या नहीं। जैसे ही मिट्टी हटी तो कफन में मलबूस मैयत को बाहर निकाला गया। जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया गया, ये देखकर मेरी जान निकल गई कि खाला का तो वहां नामो निशान भी ना था। अलबत्ता कफन के अंदर एक आदमी लेटा हुआ था जो शायद जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थीं। मेरे और मौलवी साहब के हवास सुन्न हो गए थे। हम सब डर कर पीछे हटे। हमने उसे बाहर निकाला और उस पर पानी फेंका तो उसे जल्द ही होश आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे पहचान कर एक बार फिर मुझे झटका लगा। वो वही फकीर था जो हमारी गली में आया करता था और जिससे मेरी खाला बातें किया करती थी। मेरा सर चकरा गया था। ये क्या मामला चल रहा है? मैं तो खाला को बचाने के लिए आई थी और उनकी कब्र में उनकी बचाई ये आदमी कहां से आ गया था? आधी रात को सुनसान कब्रिस्तान में ऐसे इंकशाफात हो रहे थे कि अगर मेरे साथ मौलवी साहब ना होते तो मेरा डर के मारे दिल बंद हो जाता। दूसरी जानिब वो फकीर भी शायद मुझे पहचान गया था। उसने उठकर भागने की कोशिश की मगर उससे भागा नहीं गया क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। मैंने हैरान होते हुए पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, एक जानिब से मेरी खाला की आवाज आई कि ये मेरा मुजरिम है, इससे मैंने ही इस कब्र में डाला था। फिर खाला मेरी तरफ देखकर गुस्सा होने लगी कि आखिर क्यों मैंने इस शख्स को कब्र से निकाला। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खाला का मुजरिम कैसे है ये। मैंने खाला की तरफ देखकर पूछा, खाला आप तो यहाँ इस कब्र में थी, फिर बाहर कैसे निकली? इतने में मेरी नानी और मेरी अम्मी भी पीछे से आ गईं। मेरी खाला कहने लगी, परेशान ना हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर मेरी खाला ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये मेरा शौहर है, मैं इसी के साथ भागी थी और इसने बाद में मुझे धोखा दिया और तवाइफों के पास छोड़ आया था। जब से मैं इसके जाल से फरार होकर आ गई थी, उसी वक्त से ये मेरे पीछे था। मालूम करते करते ये मुझ तक पहुंच ही गया और मेरे घर का पता चला लिया। मेरे घर आने से पहले ही ये गली में चक्कर काटता रहता था ताकि जिस दिन मैं वापस आऊं ये मुझे देख ले। खाला की बात सुनकर मुझे याद आया कि हाँ, खाला के घर आने से 2-3 दिन कबल ही ये शख्स फकीर के भेस में हमारी गली में नजर आया था। अब मुझे समझ आई थी कि वो क्यों आता था। जिस दिन मैं घर वापस आई उसको मैंने देख लिया था, इसलिए छुप गई थी और रात के पहर घर का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे पता चल गया कि मैं घर वापस आ गई हूं। ये रोज मुझे धमकी देता था कि अगर मैं वापस ना गई तो ये तुम्हें उठा कर ले जाएगा। ऐसे जितने भी पैसे मिले थे वो ये खर्च कर चुका था और अब ये मेरे बदले में और पैसे कमाना चाहता था। इसलिए बार बार मुझे वापस चलने को कहता और कहता कि मेरे बदले मेरी भांजी को अगवा करके उसी कोठे पर ले जाएगा। मैं उसकी इन आए दिन की हरकतों से बहुत तंग आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मरने का नाटक कर लिया जाए ताकि सबको पता चल जाए कि मैं मर गई हूं और इस तक भी ये खबर पहुंच जाए। इसी तरह ये मेरा पीछा छोड़ेगा। मैंने और अम्मी ने मिलकर ये प्लान बनाया था। अम्मी ने कहा था कि वो 2 घंटों बाद मुझे आकर कब्र से निकाल देंगी और कहीं दारुल अमान में छोड़ आएंगी ताकि मेरी वजह से तुम्हारी शादी ना रुके और कोई मसला पेश ना आए। ये जनाजे में भी आया था। इसने सोचा था कि जिंदा तो हाथ आई नहीं, क्यों ना मेरी लाश से गुर्दे वगैरह निकाल कर बेच दे। इसी नीयत से इसने सबके जाते ही कब्र खोदना शुरू कर दी। जैसे ही इसने मुझे कब्र से बाहर निकाला, मैंने सांस लिया तो ये डर गया। उसी वक्त अम्मी आ गईं। उन्होंने और मैंने मिलकर इसकी खूब पिटाई की और सजा के तौर पर मैंने इसे इस कब्र में जिंदा दफन कर दिया ताकि मुस्तकबिल में ये किसी और के साथ बुरा ना कर सके। अभी मैं घर गई तो तुम्हारी अम्मी ने बताया कि तुम कब्र खोदने गई हो, इसलिए मैं यहां आ गई। तुम इसको दोबारा जिंदा दफन कर दो। मैं इस शख्स को जिंदा दरगोर कर देना चाहती हूँ। वो लड़का गिड़गिड़ाते हुए मुआफी मांगने लगा कि अब किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। मेरी खाला की कहानी सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बेटी किसी की जान लेना अल्लाह ने मना फरमाया है। मेरा बेटा पुलिस में है, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम लोग अपने घर चले जाओ। उन्होंने फोन किया और उसी वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। बाद में उसका पूरा गैंग पकड़ा गया। कुछ अरसे के बाद वही मौलाना साहब अपने बेटे के लिए खाला का रिश्ता ले आए। यूं मेरी खाला की तौबा अल्लाह को पसंद आ गई और अल्लाह ने उनको बेहतरीन हम सफर से नवाजा।
میں نے اپنی خالہ کی کہانی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہر کسی کا بہترین جوڑ اللہ نے بنا رکھا ہے۔ لڑکیوں کو گھر سے بھاگ کر یا دولت کے لالچ میں آ کر کسی لڑکے کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہیے، ورنہ نتیجہ برا ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی میری خالہ جیسا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ بچہ آئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔